मैकेनिक्स चल रहा है हमारा। मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन में 2D मोशन, 2D मोशन का एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या करते हैं, पार्टिकल को किसी हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं, उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो पार्टिकल दो एक्सिस पर मोशन करता है। उन दो एक्सिस पर मोशन को कैसे कंसीडर करते हैं हम, देखो कल मैंने आपको शायद वहां तक बता दिया था, इसका हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड कर लिया था हमने। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। यू वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को हमने फेंका, इधर हो जाएगा यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा। ये अगर थीटा एंगल है, वेलोसिटी का कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ओ से प्रोजेक्ट किया, ए इसका हाईएस्ट पॉइंट है, बी इसका वो पॉइंट जहां पर जाकर के वापस वो टकराएगा। ए से डी मैंने सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ से, ये हमारी हाईएस्ट हाइट, राइट। देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड करेंगे। इक्वेशन ट्रेजेक्टरी का मतलब है द पाथ ऑन विच द पार्टिकल मूव्स ऑन कर्व। ये जो कर्व है, इस कर्व का इक्वेशन हमें फाइंड करना है, राइट। मैंने आपको सिखा दिया किसी भी पॉइंट पर अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी तो कैसे करेंगे, किसी भी जगह का अगर हमें डिस्टेंस चाहिए तो कैसे फाइंड करेंगे, हाइट कैसे फाइंड करेंगे और डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। आज वापस फिर से सारी चीजें रिपीट करूंगा। पहले हम फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। एंड व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, द पाथ ऑन विच द पार्टिकल मूव्स। ठीक, तो लिसन केयरफुली। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, equation of trajectory we are going to find. Or equation of trajectory is nothing, just we consider the motion of the particle along to the x-axis, motion of the particle along to the y-axis, then we will combine them and we will get the equation of trajectory. The very simple idea, suppose I am going towards x-axis and the distance traveled on x-axis is given by sx is equal to uxt plus half of axt square, right? Okay, so but in the horizontal direction there is no acceleration, x is equal to 0, and the distance traveled on x-axis let us suppose x, distance traveled on y-axis let us suppose y. So this x is equal to uxt, x is 0, therefore x is equal to uxt only. Say equation number 1, and here from here I can get the value of t, that is x by ux. Simply the equation on y-axis is y is equal to uyt plus half of ayt square. You know the acceleration due to gravity, only the acceleration working on the particle that is vertically downward, plus g. And in vertical motion, if the particle is going vertically upward, a is equal to minus g. So because we are considering the vertical motion on y-axis, therefore this ay will be minus g. You know very well, I have told you earlier. So sy is y uyt minus half of gt square. This is the distance traveled on y-axis in t second. This is the distance traveled on x-axis in t second. Now, when we find the equation of any curve, we have to delete the t, time. Time को हमें delete करेंगे. और time delete कैसे होगा बेटा? यहाँ से x is equal to uxt था, तो t is equal to क्या होगा? x by ux, right? ux से ध्यान रखना है ना. तो t की वैल्यू यहाँ से रख दो, तो y is equal to uy x by ux minus half of g. What is t? X by ux whole square. So here I have the equation x uy by ux minus half of g x square ux square. This is the equation of trajectory.
अगर इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को हमें एंगल्स की फॉर्म में लिखना है बेटा, देखो तो हमें पता है यू एक्स यू कोस थीटा, यू वाई यू साइन थीटा है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो x यू वाई यू साइन थीटा अपॉन यू कोस थीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा. You will be cancelled out here. Sin theta upon cos theta will be tan theta. So x tan theta minus half of gx square divided by u square cos square theta, and 1 upon cos square theta is known as sec square theta. Therefore, our equation becomes x tan theta minus half of gx square sec square theta divided by u square. This is the equation of trajectory. If I want to find कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज रिप्रेजेंटिंग व्हिच टाइप ऑफ कर्व, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कर्व्स. इट माइट बी ए सर्कल, इट माइट बी ए पैराबोला, इट माइट बी हाइपरबोला, इट माइट बी इलिप्स, कोई भी हो सकता है ना. तो ये किसका इक्वेशन है फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से. यहां पर देखो टू वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है. एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 1, दूसरे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 2. और जब भी एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, दूसरे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो दैट इक्वेशन नोन इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला. तो यहां अगर देखें, देखो y की पावर 1, x की पावर मैक्सिमम 2, इट कैन बी रिटन y इज इक्वल टू cx माइनस dx स्क्वायर, where c is tan theta and d is half of g sec square theta by u square, and this equation shows the equation of parabola. इक्वेशन ऑफ पैराबोला. तो जब आप बोर्ड देंगे तो बोर्ड में ये भी आ सकता है कि प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज अ पैराबोला. राइट. मैं अभी इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं बताता हूँ पैराबोला कैसा रहता है, वो भी आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ. तो दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला. नोट कीजिए इसको जल्दी से. अभी एक और इक्वेशन आएगा ट्रेजेक्टरी का, इसमें 3 पार्ट्स हैं. ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, थर्ड टाइप इक्वेशन और सिखाता हूं अभी. नोट कीजिए. ठीक है कृष्णा, पढ़ लिया बेटा मैंने. नोटेड. चलो आगे बढ़ते हैं. तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गया हमारे पास. ठीक है. और इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, पाथ ऑफ ट्रेजेक्टरी. इसका एक और फॉर्म होती है, देखो here we have y is equal to x tan theta minus half of gx square sec square theta
डिवाइडेड बाय यू एक्स स्क्वायर यानी कि यू स्क्वायर। देखो यहां से एक्स टेन थीटा कॉमन ले लीजिए, एक्स टेन थीटा कॉमन लेंगे, यहां हो जाएगा माइनस, यहां देखो हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और एक्स टेन थीटा यहां से कॉमन ले लिया तो यहां पर एक्स टेन थीटा आएगा। इस इक्वेशन को रीअरेंज कर रहा हूं मैं, एक्स टेन थीटा 1 माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर में एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर केवल एक्स बचेगा, नीचे देखो एक्स मैंने एक्स से काट दिया, ठीक है, और टेन थीटा को लिख दूंगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कोस स्क्वायर थीटा, एक कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, जी ऊपर है। अगला स्टेप देखो एक्स टेन थीटा 1 माइनस, देखो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, जी को नीचे ले आओ तो एक्स डिवाइडेड बाय 2 यू स्क्वायर भी होगा इसमें कहीं, ये यू स्क्वायर भी है, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं। तो एक्स 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाई जी, और इसका मतलब जानते हो हॉरिजॉन्टल रेंज होता है, तो एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो 3 इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमारे पास बेटा, ध्यान से देखो। नंबर 1 वाई, ये वाला, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का ये सेकंड इक्वेशन है, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का थर्ड इक्वेशन है। जनरली नीट लेवल पर तो इससे नहीं पूछा जाता, लेकिन जेई में यहां तक का लेवल आपको याद होना चाहिए कि y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा टाइम्स 1 माइनस एक्स बाई आर, this is the equation of trajectory and these are the 3 forms of the equation of trajectory, right? चलो let's move forward, नोट कर लो इसको फटाफट। इन सब इक्वेशन से आप बहुत अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स भी कर सकते हो। एनसीईआरटी लेवल की प्रॉब्लम्स मैं कर रहा हूं अभी एक दो, उसके बाद कुछ हाई लेवल प्रॉब्लम्स करेंगे। नोटेड। एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, इसके पीछे के भी क्वेश्चन करते हैं अपन, सारे करके देखते हैं। ये बेकार की लैंग्वेज लिख करके देता है एनसीईआरटी वाला, इससे कोई मतलब नहीं होता है। देखो क्वेश्चन है, गैलीलियो गैलीलियो इन दिस बुक टू न्यू साइंसेस, फालतू का है, इन दिस बुक टू न्यू साइंसेस, और लिखता है स्टेट दैट द इवेल्यूशन विच state that for elevation which exceeds elevation for exceeds or fall short of 45 degree fall
short of 45 degree by equal amounts the ranges are equal. The ranges are equal. Prove this statement. फालतू का है, वो मैंने कल ही बता देता आपको। ये बोलना चाह रहा है कि आप ये बताइए कि इक्वेशन जो है, कौन सी इक्वेशन, जो रेंज की इक्वेशन है, वो थीटा और 90 माइनस थीटा पर सेम होती है। वो कल भी मैंने आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी ने अलग से पूछा है, फिर से बता देता हूं मैं कि थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज सेम होती है। वो हम पहले से ही जानते हैं। देखो रेंज का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाई जी। ये कहां पर है, थीटा पर। अब r 90 माइनस थीटा अगर मैं कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, 2u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कोस 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी, और 2u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा इज व्हाट, कोस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट है, कोस 90 माइनस थीटा इज व्हाट, साइन थीटा बाई जी। तो ये दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं कि थीटा एट आर इज इक्वल टू थीटा एक 90 माइनस थीटा आर इक्वल। ठीक है, ये ऐसा एक क्वेश्चन पूछा था इन्होंने। एक और पूछा है, बुक के अगर इसके पीछे के क्वेश्चंस देखें, बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन है, मैं तो करवाना भी नहीं चाहता। ये सब आप लोग करोगे, शायद सब आप लोगों को आ ही जाएंगे। इससे बहुत हाई लेवल का आप लोगों ने पढ़ लिया है। देखो, तो यहां से हमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मिल गई। मैं एक बार फिर से आपको इलस्ट्रेट कर देता हूं इसको। देखो, ठीक है, तो हमें क्या क्या सीख लिया हमने, एक बार फिर से मैं इसको इलस्ट्रेट करता हूं, तुम्हें ध्यान से देखो जरा। हाँ, एक चीज बता रहा था मैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हालांकि मतलब की बात नहीं तुम्हारे, लेकिन फिर भी सिखा देता हूं मैं। देखो इधर, नहीं तुम कहोगे सर इक्वेशन ऑफ पैराबोला बोल तो दिया। इक्वेशन ऑफ पैराबोला का मतलब क्या हुआ, इसमें टू वेरिएबल रहेंगे। एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 रहेगी, दूसरे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 रहेगी, तो उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, जैसे ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, इसको पैराबोला बोलते हैं। और ये होता है, यहाँ कुछ डिस्टेंस है इसकी, अगर मैं इसको एक्सिस मान लूं तो y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर। y 1 पावर है, x की 2 पावर है। इधर चले जाओ तो ये जो बन जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -4ax स्क्वायर। ठीक है, ये जो बनेगा x इज इक्वल टू 4ay स्क्वायर। ऐसे बनाएंगे तो x इज इक्वल टू -4ay स्क्वायर। ये पैराबोला आ जाए। ठीक है, और ऐसे अगर हाइपरबोला देखना है आपको, तो इसका मतलब पैराबोला के लिए क्या चाहिए, एक वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 1 होना चाहिए, दूसरे वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 2 होना चाहिए। तो वो इक्वेशन किसका होता है, पैराबोला का इक्वेशन होता है। करेक्ट। तो जैसे हमारे पास था y इज इक्वल टू माइनस सी एक्स माइनस डी एक्स स्क्वायर, तो y की मैक्सिमम पावर क्या थी 1, x की मैक्सिमम पावर क्या थी 2। इसका मतलब वो कहता है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला। राइट। तो हमने इस ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में हमने क्या क्या सीखा। ये प्रोजेक्टाइल टाइप 1 था, टाइप 1। इस टाइप 1 में हमने क्या क्या सीखा देखो। ठीक है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट मतलब यहां से ग्राउंड से चालू किया
और ग्राउंड पर खत्म हो गई। इसको बोला अपने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ठीक है बेटा। फिर हमने क्या किया, यहां से किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। ये इसका ux, ये इसका uy, और आपको बार बार बता रहा हूं मैं, us का मतलब u cos थीटा, uy का मतलब u sin थीटा। ये हो गया हाईएस्ट पॉइंट, ये हो गया इसका जहां पर पार्टिकल गिरेगा, ये हो गया, ये c हो गया। तो हमने क्या क्या सीखा देखो। नंबर 1, हाईएस्ट हाइट h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। हाईएस्ट हाइट मैक्सिमम कब हो सकती है, जब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो। और ये कब पॉसिबल है, जब साइन स्क्वायर 90 तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर h मैक्सिमम होगा, दैट विल बी गिवन बाय u स्क्वायर बाय 2g। दूसरा हमने सीखा हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज r इज इक्वल टू हमने सीखा 2 u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g या 2 u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाई g। इसको अगर मैं एनालिसाइज करूं बेटा, तो साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 1, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज साइन 90, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर आर मैक्सिमम होगा, दैट इज यू स्क्वायर बाई जी। ये हॉरिजॉन्टल रेंज सीखा। हमने ये भी सीखा कि थीटा और 90 माइनस थीटा पर रेंज सेम होती है। दो बातें, ये होगी हाईएस्ट हाइट और ये हॉरिजॉन्टल रेंज। तीसरा हमने सीखा कि टी ओ ए यहां तक जाने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं अपन यू वाई बाई जी या यू साइन थीटा बाई जी। टोटल टाइम ओ से लेकर बी तक जाना है जिसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, दैट इज 2 यू वाई बाई जी या 2 यू साइन थीटा बाई जी, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तीसरी बात मैंने बताई थी आपको, किसी भी जगह अगर मैं वेलोसिटी फाइंड करनी है, मान लो इस जगह पर मैं वेलोसिटी फाइंड करनी है, ये v हो गया, ये इसका कंपोनेंट vx, ये इसका कंपोनेंट vy। ठीक है, तो v फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x एक्सिस पर वेलोसिटी निकालेंगे, y एक्सिस पर वेलोसिटी निकालेंगे, दोनों को कंबाइंड कर देंगे, हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। इस पॉइंट अगर हमें चाहिए, कहीं भी जहां पर हमें वेलोसिटी चाहिए उसका टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, टेंजेंट पर v आएगा, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उसका वर्टिकल कंपोनेंट। ऊपर जाते समय a को माइनस जी लेंगे, नीचे आते समय a को प्लस जी लेंगे और हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये सब चीजें मैंने आप लोगों को इसमें सिखाई है। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करें आप, तो क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू। फिजिक्स में सब सिंपल है और सिंपल कुछ भी नहीं है। अगर आप कंसेप्ट पर जाते हो, आप ये फॉर्मूले लर्न करने की कोशिश करोगे, फिजिक्स में कुछ नहीं आता। लेकिन अगर आप कंसेप्ट आपके पास है तो आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सपोज मैंने आपसे पूछा कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड such that at a particular time its equation of trajectory is given by y is equal to 16 minus 8x square, 16x minus 8x square. Find initial velocity and angle of projection. अब बोलोगे सर अजीब सा सवाल दे दिया आपने, तो ऐसा तो कुछ सिखाया ही नहीं। लेकिन मैंने इसको क्या बोला आपसे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की अभी मैंने 3 इक्वेशंस बताए आपको, याद करो। पहली इक्वेशन बताया मैंने y इज इक्वल टू x ui बाई यू एक्स माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। इस इक्वेशन से भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा क्या बताया मैंने, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बाई यू स्क्वायर। तीसरा ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन बेटा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। 3 इक्वेशंस बताए बेटा मैंने। अब आप ये देखो कि ये जो इक्वेशन गिवन है ये किससे कंपेयर कर सकते हैं, हम इससे भी कंपेयर कर सकते हैं और सेकंड से कंपेयर कर सकते हैं। मैं आपको दोनों से कंपेयर करके बताता हूं, दोनों से कंपेयर करके देखते हैं। ध्यान से देखो जरा, पहले इसको फर्स्ट वाले से कंपेयर करो। हमारा इक्वेशन क्या है बेटा, y इज इक्वल टू 16x माइनस 8x स्क्वायर। इस इक्वेशन पर आ जाओ, y की जगह y है, x की जगह x है, तो uy बाई ux की जगह क्या है 16। ठीक है,
इसी तरह से यहां पर एक्स स्क्वायर, तो 8 की जगह क्या है, हाफ ऑफ जी अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, क्या हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते? इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक, देखो यहां क्या होता है, यूएक्स होता है, जी अपन जानते हैं, यूएक्स अपन जानते हैं, तो यहां से यूएक्स की वैल्यू उठा करके यहां पर रख दीजिए, यूवाई की वैल्यू आ जाएगी। इससे आप कंपेयर करो, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स टेन थीटा। देखो एक्स टेन थीटा इज इक्वल टू 16 एक्स से एक्स कर गया, टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 16। तो आराम से आप इससे कंपेयर करके वैल्यूज फाइंड कर सकते हो। जी को 10 लिख दो, यूएक्स क्या हो जाएगा, 10/2 यानी कि 5/8 इज इक्वल टू यूएक्स। यूएक्स की वैल्यू उठा करके आप यहां रख दीजिए, यूवाई की वैल्यू आ जाएगी। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। देखो एक क्वेश्चन करके देखिए, एक क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए पार्टिकल is given by y is equal to root 3x minus half of gx square, g या सीधा लिखो x स्क्वायर, ऐसा कुछ दे रखा है। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब इसको मैं कंपेयर कर दूं, y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा से, तो टेन अल्फा की जगह क्या है मेरे पास, रूट थ्री। टेन अल्फा इज इक्वल टू रूट थ्री टेन में किसकी वैल्यू होती है बेटा, 60 डिग्री की। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, 60 डिग्री। समझे, नोट करो जरा। एनसीईआरटी के तो एडिशनल एक्सरसाइज में भी कोई टफ क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा मेरे को। एक क्वेश्चन करते हैं, a particle is projected from one side of hall such that it passes nearby the ceiling of hall and strike the other side of hall. If velocity of projection is 40 meter per second and height of hole is 25 meter, find angle of projection and width of hole. ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। मैं इसको विजुअलाइज करता हूं आपके लिए। ये कोई हॉल है, यहाँ से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, कोई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं है, और वो कह रहा है कि ये जो सीलिंग है इससे टच भी नहीं हुआ और बिल्कुल ठीक उसके पास से होकर के निकल करके दूसरी जगह जाकर के वो गिरा।
इसकी जो हाइट दे रखी है वो 25 मीटर है और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन 40 मीटर पर सेकंड है। तो हमें एक तो अल्फा निकालना है और एक तो हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। अब चूंकि हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमें क्या चाहिए, एंगल चाहिए। एंगल हमारे पास नहीं है। दूसरी क्या दे रखा है अपन को, 25 उसकी हाइट दे रखी है। तो पहले हाइट वाले फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, उसका एंगल निकाल लेंगे और उस एंगल को फिर किसमें यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज में यूज करेंगे। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि उनमें कुछ लगता है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाते हैं तो क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से देखो, अब यहाँ पर मेरे को पहले हाईएस्ट हाइट दे रखी है h इज इक्वल टू 25 मीटर। h क्या होता है बेटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g इज इक्वल टू 25। यहाँ से मैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g इज इक्वल टू 25 से पहले क्या फाइंड कर सकता हूँ, देखो अल्फा फाइंड कर सकता हूँ। कैसे आएगा बेटा, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 25 इंटू 2 इंटू 10, समझ गए क्या, 2g ऊपर जाएगा, u स्क्वायर का मतलब 40 इंटू 40। तो यहाँ से मुझे मिल गया, 0 से 0 गया तो 4 बच गया, 2 2 जा 4 हो गया, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। तो यहाँ आया मेरे पास 5/16। देखो मैं कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं कर दो, सोना है ना, हाँ सोना देखो ना बेटा कैलकुलेशन। यहाँ से 0 से 0, 2 2 जा 4, 5 5 में 25, 5 8 जा 40, ऊपर 5 रहेगा, नीचे 2 जा 16। तो यहाँ से अल्फा साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या है बोलो, v तो 5/4, समझ लीजिए। लेकिन हमें क्या चाहिए, देखिए हमें क्या चाहिए, r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा बाई जी। साइन अल्फा तो मेरे पास आ गया, लेकिन रेंज निकालने के लिए मुझे कोस अल्फा भी चाहिए। ठीक है बेटा, हम जानते हैं कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, क्या मैं फाइंड कर सकता हूँ। देखो u है 2 है साइन अल्फा है कोस अल्फा, अगर मुझे मिल जाए तो रेंज फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ से कोस अल्फा किससे निकालूंगा, देखो कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, 5/16, 16 माइनस 5 कितना हो गया, 11 क्या, 11/16। तो कोस अल्फा इज व्हाट, जरूर 11/4। साइन अल्फा भी है, कोस अल्फा भी है, ये भी है, सारी वैल्यूज पुट कर दो। तो 2 इंटू 40 स्क्वायर साइन अल्फा इज √5/4 √11/4 divided by 10. This is a horizontal range. बंदा क्वेश्चन इजीली ये नहीं आएगा क्वेश्चन। तो चलो इनको सॉल्व कर दो बस। ये आ गया मेरे पास 2 इंटू 40 इंटू 40 इंटू रूट ऑफ 50, 11 5 या 55 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 16, यानी कि 4 इंटू 4, 4 10 जा 4 10 जा 10 10 जा 1, ऊपर आ गया मेरे पास 2 10 जा 20 √55 आर मीटर में आर कर सकते हैं क्या हमेशा। नाइस क्वेश्चन। इसी उस पर एक क्वेश्चन आया था एक बार, क्या था देखो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, जो जल्दी जल्दी लिख सकता है वो नोट भी कर सकता है। Sir, your voice is breaking. एक क्वेश्चन आया कि एक बैडमिंटन का था, यहाँ पर नेट है
यहाँ से एक पार्टिकल को थोड़ा सा इसका बनाता हूँ इसको, ये नेट बांध रखा है यहाँ पर, और नेट की जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट वो 20 मीटर है, 16 मीटर ले लो। यहाँ से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जो इसके पास से होकर के गुजरती है, यहाँ आकर के गिरती है। इसकी जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी दी थी वो दी थी हमें 50 मीटर पर सेकंड। आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? Sir, your voice is यहाँ breaking. पर क्या है मेरे पास, देखो 50 मीटर पर सेकंड है, ये 16 मीटर हाइट दे रखी है। हाइट से पहले मैं फाइंड करके उसका अल्फा फाइंड कर लूंगा, sin अल्फा cos अल्फा y ये नहीं, वो नहीं रख करके हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करेंगे। ये ट्राई और सेल्फ पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे जो 25 था उसकी जगह 16 है और 40 की जगह 50 है। फटाफट आंसर निकाल करके बताओ जरा कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी। एक शटल को यहाँ से फ्लाई किया, यहाँ से इसको क्रॉस करती है, यहाँ पर जाकर के गिरती है, और इसकी जो हाइट है वो 16 मीटर है। ट्राई कीजिए, मुझे बताइए जल्दी। Right out. The height of Sir, the your voice is breaking. height of 16 meter is the height of the net, and 50 meter per second is the projection velocity. Sir, your earphone is not connected properly. That is why it is breaking. Board is clear. If Wi-Fi problem would be there, then board would not be clear. It is clear now. Hello. Yes, Can you sir. hear Now now? it is clear. Okay. Okay, find out the alpha. H is equal to u square sin square theta divided by Alpha 2u. equal to sine inverse 4 by 5 root 3. By d. It is 16, u square is 50 square, sin square theta 2 into 10. Sin square theta is equal to 16 into 2 into 10 divided by 50 into 50. So 1 0 is cancelled out here. It's still 225 ja. 16 by 125. Correct? This is sin square theta. So
cos square theta will be 1 minus sin square theta. So 1 minus 16 by 125, that is 109 by 125, correct? So sin theta is equal to 4 by 5 root 5, and cos theta is root of 109 divided by 5 root 5. Place these values. सही किया मैंने? थोड़ा ये आ रहा है आपका भी? 16 2 10 50 square 225 जा 0 16 25 5 जा 125. हाँ करेक्ट है. 4 by 5 root 5. देखो ये आएगा. तो r is equal to 2u square sin alpha cos alpha by g. I will get 2 into 50 into 50 into sin alpha 4 by 5 root 5 into 109 by 5 root 5 divided by 2 into 10. After solution, this is R equal to 16 root 109. हाँ. हो जाएगा. Yes. नेक्स्ट देखिए. A particle is projected with 54 kilometer per hour, making an angle 37 degrees with horizontal. Find number 1 time of flight, number 2 velocity at 1 second and 5 seconds, number 3 horizontal range, number 4 equation of trajectory. फाइंड कीजिए. सिचुएशन में बना के देता हूं. यहां से मैंने 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर का मतलब हो गया 54 इंटू 5 बाई 18 15 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी. और एंगल है 37 डिग्री. यूएक्स क्या आ गया आपका 15 cos 37, that is 15 into cos 37 4 by 5 3 4 जा 12 मीटर पर सेकेंड. और इधर ui आ गया आपका 15 sin 37, that is 15 into 3 by 5 3 3 जा 9 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे. टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन क्या है? T is equal to 2ui by g. 2 into ui is what? 9 by 10. So this is 9 to the 18 by 10. बहुत कम आ गया.
इसको 5 सेकंड छोड़ दो, इसलिए मैं पहले से निकाल करके दे रहा हूँ। वेलोसिटी एट 1 सेकंड निकाल देना, 1.8 बाई 10, ठीक है, तो ये आ गया 1.8 सेकेंड। इसका मतलब 1.8 सेकेंड में तो बेटा वो ये भी क्रॉस कर जाएगा, हाईएस्ट साइड भी क्रॉस करके चला जाएगा। करेक्ट, टी आ गया। वेलोसिटी एट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के देखो यहाँ तक पहुंचने का टाइम कितना लगा उसको, 0.9 सेकेंड, और यहाँ पर पहुंच गया 1.8 सेकेंड में। तो इसका मतलब 1 सेकेंड में यहाँ कहीं होना चाहिए vx vy। अब अपन जानते हैं v निकालने के लिए हमें vx भी चाहिए vy भी चाहिए। पहले vx फाइंड करो, vx इज इक्वल टू ux प्लस axt, vx is equal to ux is what, 12 plus ax is 0 into t is 1 second, therefore 12 meter per second, because the horizontal velocity never changes. Vertical velocity vy is equal to uy plus ayt, uy is 9 meter per second and that is vertically upward, minus 9 plus ay नीचे की तरफ 10 into t is 1, vy is 1 meter per second. नहीं, नीचे आ रहा है ना ये, करेक्ट है, सॉरी यहाँ 0 है, यहाँ से आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9 प्लस 19 मीटर पर सेकेंड। Vx से Vy है तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट VX स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर को सोल्व कर दीजिए, ये हो गया 144, 19 क्या होता है 361, कितना आ जाएगा, ये वाली स्टेप देखो ध्यान से, यहाँ माइनस आना चाहिए प्लस आना चाहिए, बताइए, -1, बताओ क्यों, यू वाई माइनस क्यों लिया मैंने, ये एक्सिस के ऊपर जा रहा है, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 145, और रूट 145 क्या हो जाएगा बेटा 12.01 मीटर पर सेकेंड। और क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला लगा दो, सीधा फॉर्मूला लगा करके फाइंड करो, r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा कोस अल्फा बाई जी, 2u स्क्वायर 15 स्क्वायर साइन अल्फा साइन 37 इज 3/5, कोस 37 4/5 बाई जी इज 10। r निकालिए फटाफट, आंसर दीजिए। ये आर ए शर्मा के नाम से है, बी ए शर्मा, आर ए शर्मा के नाम से किसने ज्वाइन किया रे, हु ज्वाइंड, ये लास्ट क्लास में मुझे आर ए शर्मा दिख रहा है, ये कौन है, नाम बताओ अपना।
आंसर बताइए, इसका आंसर क्या आ रहा है? नाम बताओ किसने ज्वाइन किया, आर एस के नाम से, आर एस शर्मा के नाम से। Sir, R equal to 21.6. 21.3। Sir, 21.6. 21.6, not करेक्ट। अब मैं आपको होमवर्क देना चालू करूंगा, आज से होमवर्क मिलेगा आपको। अभी तक मैंने होमवर्क नहीं दिया था, तो होमवर्क मिलेगा। ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा, 10-20 क्वेश्चन दूंगा बस। इसकी प्रैक्टिस करो आज फॉर्मूले की। कल सेकंड टाइप प्रोजेक्ट कैल पढ़ेंगे, जो किसी हिल से अगर किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दें तो वो कहाँ जाके हिट करेगा। ठीक है, दैट्स फॉर टुडे।